Hello and welcome back. In this lecture I will discuss couple of numericals based on concept of excess pressure. जैसा तुम जानते हो लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के अंदर प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और वैसा सरफेस टेंशन के कारण होता है. वन ऑफ द रीज़न इज सरफेस टेंशन एंड डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड outside is also known as excess pressure. So excess pressure for bubble is 4T by R, where R is radius of that soap bubble, and for liquid drop 2T by R. R again is radius of liquid drop, and of T of course is surface tension. So let us discuss couple of numericals. First question, the excess pressure in soap bubble is this much. If 8 soap bubbles are combined to form a big soap bubble, then excess pressure in big bubble is. So 4 options are given. So we need to find radius. तो ये fact use कर लेते हैं कि volume constant है. एक bubble radius suppose R है, तो total volume हो जाएगा 8 into 4/3 pi r cube. और ये कंबाइंड होके एक बबल मिल रहा है, तो उसका नया रेडियस कैपिटल आर है. 4 pi/3 विल कैंसिल आउट. सो न्यू रेडियस इज 8r cube इज इक्वल टू कैपिटल R cube. सो R इज इक्वल टू 1/3 कर लेंगे इस टर्म का, तो 2 cube एंड R cube. सो यू आर लेफ्ट विथ 2r. तो नया रेडियस 2r होगा. एक्सेस प्रेशर एक सोप बबल में गिवन है 10. सो डेल्टा P1 जो इनिशियल बबल था 4T बाय स्मॉल r, और ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है. नया एक्सेस प्रेशर 4T बाय कैपिटल R. कैपिटल R इज 2 स्मॉल r. सो 10/2 equal to 5 Newton per meter square. So option C is correct one. Next, the excess pressure inside one soap bubble is 4 times that inside second soap bubble. Then the ratio of their surface area is. So you have 2 soap bubble और pressure का ratio given है. area का या surface area का ratio बताना है. 4 option given है. So same डेल्टा P1 वही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. चूँकि सोप बबल है तो 4T by R1, और दूसरे में एक्सेस प्रेशर डेल्टा P2 4T by R2. इस दोनों का रेशियो गिवन है. सो डेल्टा P1 by डेल्टा P2 इक्वल टू, डिवाइड कर दो, 4T विल कैंसिल आउट, R2 by R1. सो दिस इज 4 टाइम्स. So A1 is 4 pi R1 square, A2 is 4 pi R2 square. A1 by A2 is R1 square by R2 square. R2 by R1 is 4, so R1 by R2 whole square is 1/4 whole square equal to 1/16. So ratio is 1:16. The valve V in bent tube is initially kept closed. 2 soap bubbles of different size A and B are formed at 2 open ends of tube. V is now open and air can flow freely between bubbles. 4 options are there. So look at this arrangement. Valve पहले closed था, अब open कर दिए. What will happen? तो clear है from arrangement. This one is small, this one is large. दोनों का radius अलग अलग है. Excess pressure 2T by R या 4T by R, whatever expression you take, वो issue नहीं है. यहाँ proportionality check करना है. तो excess pressure is inversely proportional to radius. तो point A और point B, A पे radius greater होगा क्योंकि ये smaller है. अब अगर प्रेशर A पे ग्रेटर है तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा ये बताओ. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो व्हाट विल हैपन, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगता है? अगर A से B फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, A का साइज कम होगा और B का
बढ़ेगा, मतलब which option is most appropriate one? No change in size of bubble will become equal, bubble A will become smaller and B will become larger, size of A and B will be interchanged. Obviously C correct है, A will become smaller, B larger होगा because flow from high pressure to low pressure. Next, what should be pressure inside a small air bubble of 0.1 mm radius situated just below water surface? Surface tension of water and atmospheric pressure given है. तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. एक एयर बबल है माइंड यू. तो ये एक एयर बबल है जो कि वाटर सरफेस के जस्ट नीचे है, और यहाँ पे प्रेशर जो है जस्ट बाहर एटमॉस्फेरिक है. दिस इज इनसाइड वाटर. ये एयर है. कितना प्रेशर होगा इनसाइड? तो इनसाइड प्रेशर ग्रेटर होगा आउटसाइड से. सो पी आई माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू 2t बाई आर, बिकॉज यहाँ एक ही सरफेस है, ये एयर बबल है. 2t बाई आर. सो इम्पॉर्टेंट इज, ये नहीं कि बबल है तो दो सरफेस ले लेंगे. हाउ मेनी सर्फेसेज आर देयर? 1. सो p इनसाइड इज P आउटसाइड एटमॉस्फेरिक, तो P आउट प्लस 2t बाई आर. सारा न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, सबस्टिट्यूट कर लो. P आउट कितना है? 1.013 इंटू 10 पावर 5 प्लस सरफेस टेंशन इज दिस मच एंड रेडियस इज 0.1 mm. 0.1 mm को कन्वर्ट कर मीटर में. सो 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3. सिंप्लीफाई, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो. यू गेट दिस मच और नॉट, वो चेक कर लो खुद से. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सेपरेट एयर बबल्स, रेडियाई गिवन है, formed of the same liquid, surface tension is also given, come together to form a double bubble. Find radius and sense of curvature of internal film surface common to both the bubbles. तो दोनों बबल मिलके एक नहीं बन रहा है, यू हैव डबल बबल. तो पहले ऐसा दो बबल ड्रॉ कर लो अलग अलग रेडियस का. ये दो बबल है, रेडियस गिवन है से R1 एंड R2. दिस वन इज बिगर वन, ये स्मॉलर है. R1 इज ग्रेटर देन R2. अब दोनों के अंदर प्रेशर जो है, एक में प्रेशर P0 जो सराउंडिंग का प्रेशर है प्लस 4t बाई R1, और दूसरे में प्रेशर सपोज P2 है, इनसाइड प्रेशर P0 प्लस 4t बाई R2. नाउ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सो P2 is greater than P1. Now they form a double bubble. तो डबल बबल कैसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ दिस डायग्राम. ये एक डबल बबल हो गया. अब प्रेशर कहाँ ग्रेटर है? 2. प्रेशर एट 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 1. 1 और 2, बबल 1 और 2 के अंदर का पॉइंट है. सो अब डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो P2 माइनस P1 है. P2 और P1 का वैल्यू पुट कर दो, P0 विल कैंसिल आउट. सो 4t बाई R2 माइनस 4t बाई R1. 4t वी कैन टेक कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. LCM ले लो और सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा. नाउ प्रेशर किस तरफ ज़्यादा होता है? एक्सेस प्रेशर किस साइड ज़्यादा होता है? कॉनकेव साइड या कॉन्वेक्स साइड? यह हमेशा कॉनकेव साइड में ग्रेटर होता है. एक्सेस प्रेशर इज ग्रेटर ऑन कॉनकेव साइड. सो ये ऐसा ही शेप होना चाहिए. कॉनकेव किधर होना चाहिए? छोटे वाले बबल की तरफ, तभी तो नेट प्रेशर होगा P2 माइनस P1. तो ये कॉमन फिल्म है. ये प्रेशर कितना होना चाहिए? एक्सेस प्रेशर 4t बाई नया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. सो और ये प्रेशर हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं. दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर देंगे. सो 4t R1 माइनस R2, दिस एक्सप्रेशन, बाई R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 4t बाई कैपिटल R. 4t will cancel out, so
R is equal to R1 R2 by R1 minus R2. Now substitute value of R1 and R2. So R1 is 0.004 minus 0.002 divided by the difference is 0.004 minus 0.002. Simplify, this will cancel out. You are left with how much? 0.004 meter is new radius of curvature. Next question. Under isothermal condition, two soap bubbles of radii A and B coalesce to form a single bubble of radius C. The external pressure is P. Find surface tension of soap in terms of given parameters. ये एक interesting question है. Now, isothermal condition में दो soap bubble combine करके एक बड़ा bubble बनाता है of radius C का. तो एक radius A है, दूसरा radius B है. ये दोनों combine होके एक soap bubble बनता है of radius C. ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आइसोथर्मल कंडीशन है. सब में ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम कर लेते हैं जो एयर है, N1 N2 और N. तो चूंकि ये कंबाइन हो रहा है तो N1 प्लस N2 मस्ट बी इक्वल टू N. देयर इज नो लॉस ऑफ मास एनीवेयर. नाउ लेट अस यूज आइडियल गैस इक्वेशन PV बाय RT N इक्वल टू. सो फाइनली प्रेशर P3 है तो P2V बाय RT, N1 P1 V1 बाय RT और N2 क्या हो जाएगा? P2 V2 बाय RT. आइसोथर्मल कंडीशन था इसलिए टेम्परेचर सेम है. नंबर 2 ये का RT कैंसिल हो गया. सो P3V इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2. नाउ अब ये P1 P2 और P3 कितने के बराबर है? यहाँ पे हम लोग एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. तो P1 एक्सेस प्रेशर यू नो इज हाउ मच? 4T बाय रेडियस, क्योंकि सोप बबल है. सो P1 माइनस P. एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है P के बराबर है. तो वी कैन राइट दिस 4T बाय रेडियस पहले का कितना है? R. R की जगह क्या लिख लेंगे? A. तो P1 इतने के बराबर हो गया. P2 डायरेक्टली लिख लेते हैं P प्लस 4T बाय B. And what about P3? P plus 4T by C. इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने के लिए अब वॉल्यूम चाहिए. तो तीनों का रेडियस पता है. सो यू नो वॉल्यूम. सो V1 कितने के बराबर? 4/3 पाई A क्यूब. V2 4/3 पाई B क्यूब. एंड V3 इक्वल टू और V इक्वल टू 4/3 पाई C क्यूब. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू इस इक्वेशन में एंड सी व्हाट यू गेट. P प्लस 4/T A, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, P1 V1 इंटू 4/3 पाई A क्यूब प्लस P2 इज P प्लस 4/T B इंटू वॉल्यूम, सेकेंड का वॉल्यूम 4/3 पाई B क्यूब इक्वल टू वाले बबल में प्रेशर P प्लस 4T बाई C इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई C क्यूब. 4/3 पाई विल कैंसिल आउट. अब रीअरेंज कर लो इसको. हम लोगों को निकालना सरफेस टेंशन है PAQ प्लस, पहले ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं तो 4TA स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट सिमिलरली PBQ प्लस 4/T B स्क्वायर इक्वल टू PC क्यूब प्लस 4 इंटू T C स्क्वायर. नाउ ये सारा टर्म एक तरफ ले जाओ, P वाला टर्म एक तरफ और सिंप्लीफाई कर लो, खुद चेक कर लो यू गेट दिस एक्सप्रेशन और नॉट. सो 40 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रिंग दिस टर्म टू दिस साइड, माइनस C स्क्वायर और ये सारा टर्म इस तरफ ले आओ. P टाइम C क्यू माइनस A क्यू माइनस B क्यू.
minus BQ minus A cube. So how much is T equal to? T is equal to P times CQ minus BQ minus AQ divided by A square plus B square minus C square. 4 times of course A square plus B square minus C square. ये एक्सप्रेशन हो गया सरफेस टेंशन का.